Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online program. So we are studying about the percentage ratio, and now the topic is ratios to the percentage. Means if the ratio is given, how you are going to convert it into the percentage, or percentage is given and how you are going to take out the value of that percentage. Okay, so for example, your mother might have डू इडली फॉर यू. तो इडली जब करते हैं तो उसमें रेशो होता है कि 3:1 या 2:1. मीन्स इफ़ यू वांट टू मेक इडली, there is a ratio that there's 2 katori rice, then 1 katori urad dal. Means ratio is given to you 2:1. So 2 part is rice and 1 part is urad dal. Out of how many? 2 plus 1. How many total parts are there? 3 parts are there. Okay, and out of that 3 there are 2 parts rice and 1 part urad dal. Now how will you write this ratio? So 2:1. In terms of ratio, this means urad dal is to, जो part होता है वो here होता है, and the total part will be in the denominator. So 2/3. What is the percentage of the rice? Ratio of rice is 2/3 because 2 parts of rice and total parts 3. इसका percentage निकाला है, इसलिए what is percentage? It is 100%. So 100. Okay. So you have to multiply it with the ratio with the 100. It is 100%. So 200/3 is your answer. As this 200 is not divisible by 3 totally, so we can write this in a mixed fraction. So first you have to divide this. This is 2 numbers because 2 is less than 3, so we are going to take it as 20. So 3 3 6 are 18, 2 remainder, 20 again 3 6 are 20, 18, remainder 2. Now the number is repeating same times, so the remainder, and our zeros finished, so the remainder is 2, divisor is 3 and 66. So how you are going to write the mixed fraction? Quotient remainder divided by divisor. Quotient multiply by remainder divided by divisor. So quotient is 66 by remainder 2 divided by 3 divisor. So this is your mixed fraction. This is your percentage, that is 66 2/3%. Okay, this is the percentage. So how you can, if the ratio is given to you, how you can write the percentage? That also you should know how to take out the percentage from a given fraction. Okay, but this is about the rice. Now we are going to take out about the urad dal. What is the ratio of urad dal? How many part of urad dal? 1. And how many total parts? 3. So 1/3 multiply by 100 because we want the percentage of the urad dal. So again 100 divided by 3. 3 is not exactly divisible by 100. That's why we have to again divide 100 by 3. 3 3s are 9. Again 0. 3 3s are 9. Okay. So this is how the remainder is 1. Now how will you write? Quotient is 33. 33 remainder on the numerator side and divisor is on the numerator side. 33 1/3%. Okay. So this is how you can show the percentage. This is one of the example I have taken for you. There are so many examples that we can study, but the thing is just you have to know the word problem, whatever is given, and what you have to take out. Okay, so one of the example given is if 250 rupees is to be divided among Ravi, Raju and Roy, means 3 boys are there, 250 total amount of rupees is there, and you have to divide the 250 rupees in 3 boys, so that
रवि गेट्स 2 पार्ट, तो कैसे होना चाहिए उसका डिवीजन भी, रवि को 2 पार्ट्स लेंगे, राजू को 3 एंड रॉय को 5 पार्ट्स मिलने चाहिए. सो हाउ मच मनी विल ईच गेट. तो आपको रेशो क्या दिया गया है, नाम जो है उसी नाम से आपको रेशो भी लिखना है. रवि दैट इज आर वी, राजू आर जे एंड रॉय आर वाई. ओके, सो व्हाट इज द गिवन रेशो, 2 पार्ट्स ऑफ Ravi, then Raju's 3 parts and Roy's 3. So what is the percentage? See, Ravi 2 parts, Raju 3 parts and Roy 5 parts. And total money given is 250. Okay? तो आपको क्या करना है, रेशो जो है अब टोटल कितना हुआ, 2 + 3, टोटल पार्ट कितने हो गए. ओके, टोटल पार्ट्स हो गए 5 + 3 8 + 2 10. सो टोटल पार्ट्स आर 10. एंड अभी हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सबके परसेंटेज निकाल, यानी रवि को कितने मिले, रॉय को कितने मिले, राजू को कितने मिले और राय को कितने मिले. सो वी आर गोइंग टू राइट दिस रेशो एज 2/10. ओके, बिकॉज पार्ट ऑफ राजू रवि, that the part got is 2 and divided by 10 because total parts we have calculated as 10, multiply by what is the total amount given is 250. Okay, the total amount is given to you, that is 250. So there are 2 methods. Okay, amount received by each, because हमें amount निकालनी है. तो 210th of 250, क्योंकि टोटल कितने हैं हमारे पास, रुपीज़ है 250. 250 का 2/10 पार्ट हमें निकालना है. दैट्स वाई वी हैव रिटन लाइक दिस. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 0 0 गया, 25 ज़ा 50. रवि को मिले. नेक्स्ट राजू को, राजू 10 मल्टीप्लाई बाय 250. यहाँ पे भी क्या हुआ, 25 3 ज़ा 75 रुपीज़ राजू को मिले. और नेक्स्ट जो है रॉय को कितने मिले, 5 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 250. 0 गए, 25 5 ज़ा 125. तो अभी इसकी अगर हमने एडिशन की तो वो आनी चाहिए 250, बिकॉज हाउ मच अमाउंट डिड ईच गेट, 50 रुपीज़. राजू को हमने, रवि को निकाला है 75 रवि के और 125 रॉय के. तो इसकी टोटल जो है हमारी कितनी होनी चाहिए, 250. 5 + 5 10, 1 कैरी, 2 + 7 + 5 12 + 2 14 + 1 15, 1 कैरी, 1 + 1 2, हो गए 250. सो येस, दिस इज़ आवर 1 मेथड. और जो और एक मैंने पहले बताई थी वो कैसे करनी है आपको, ये हमें रुपीज़ मिले, अभी परसेंटेज में निकालना है. तो कैसे करना है, रवि के लिए क्या है, 2 पार्ट्स है, 2 डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स 10 मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100. 0 0 है, 10 2 ज़ा 20. सो 20% मिले. 20% रवि गॉट 20% अमाउंट. देन 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100. राजू गॉट 30% and Roy get 5/10 multiplied by 100. 0 5 10 are 50%. ओके, सो 50%. तो परसेंट में पूछा है तो 20%, 30%, 50%. उसका ही मतलब है 50 रुपीज़ रवि को मिले, देन 75 राजू को और 125 रॉय को. तो उन्होंने पूछा है, दोनों भी पूछा है, हाउ मच मनी विल ईच गेट, हर एक को कितने पैसे मिले वो पहला निकाला हमने. तो वो कैसे निकालना है वो भी मैंने दिखाया. और नेक्स्ट जो है हाउ मच परसेंटेज ऑफ मनी, तो परसेंट कैसे निकालना है और अमाउंट कैसे निकालनी, दैट इसके लिए आपको क्या करना है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा. तो जब अमाउंट पूछी है तो इसका क्या कितने फ्रैक्शन हमारा क्या हुआ, 2/10. तो 2/10 ऑफ टोटल मनी हमारा 250 है, यानी 250 रुपीज़ में से 2/10 पार्ट रवि का है, 3/10 पार्ट राजू का है और 5/10 पार्ट रॉय का है. इसीलिए हमने रुपीज़ निकाले हमने. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट दिस. अगर अगेन वन क्वेश्चन, इफ देर इज अनदर क्वेश्चन दैट डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन Manu Sonu so that they get 20% and
क्या है 15 स्वीट्स टोटल है. ओके दिया क्या है, व्हाट इज गिवन दैट यू शुड नो. 15 स्वीट्स दिए हैं मनु और सोनू को. तो मनु को कितने मिले हैं इसमें से 20%. कितने से 20% ऑफ 15. और सोनू को कितने मिले हैं 80%. तो परसेंट से भी हमें क्वांटिटी निकालने आनी चाहिए. तो 20% ऑफ 15. तो वो कैसे लिखना है 20% ऑफ 15 बिकॉज 15 के 20% निकालने हैं. टोटल हमारे 15 स्वीट्स है. तो 20% कैसे लिखते हैं 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15. ओके सो दैट यू हैव टू कैलकुलेट. और नेक्स्ट जो है वो 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15. ओके 0 0 गए 5 के टेबल में आता है 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15. ये 2 2 भी गए 2 1 ज़ा 2. तो टोटल कितने मिले 3. यानी 3 चॉकलेट्स 3 स्वीट्स जो है 20% ऑफ 15 यानी 3. तो 3 स्वीट्स किसको मिले मनु को. और अभी इसको निकालेंगे अगेन 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 3 4 ज़ा 12. समझ में आ गया. 12 स्वीट्स जो है वो सोनू को मिले और 3 स्वीट्स जो है मनु को मिले. तो टोटल हमें कितने होने चाहिए 15. तो हो गए 12 + 3 15. समझ में आ गया कैसे करना है. यानी मनु को 20% ऑफ 15 मिले तो वो कैलकुलेशन निकालना है. सोनू को 80% ऑफ 15 मिला इसलिए ये किया है. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट. ओके नेक्स्ट ये है इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो. अभी रेशो दिया है तो रेशो दिया है तो उसका परसेंटेज निकालना है. ओके 2:3:4. इफ़ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:3:4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल. ओके ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं 180 डिग्रीज होता है. ओके क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल. परसेंटेज पूछा नहीं है. तो 2:4 यानी हर एक एंगल 3 एंगल दिए हैं ट्रायंगल के तो उसके 3 एंगल्स है 2:3:4. और हमें मालूम है कि ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 इसलिए हमने 180. तो अभी 2 जो है इसकी टोटल करनी है 2 + 3 + 4 कितना हो गया 4 + 3 7 7 + 2 9. ओके तो टोटल हमारे पार्ट्स कितने हो गए 9. तो हमें रेशो कैसे लिखना है 2/9 ऑफ 180. ऑफ 180 निकालना है हमें राइट ना. 2/9 ऑफ 180 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 180. ओके 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 20 2 2 ज़ा 4. So 40 degrees is your first angle. Next 3 divided by 9 because second angle is of 3 parts. So 3 divided by 9 multiply by 180. 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 3 2 ज़ा 6 and 1 0. So 40 degrees here second angle. थर्ड एंगल जो है वो 4 पार्ट है तो 4 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 180. 9 9 2 ज़ा 18 4 2 ज़ा 8 और एक 0 दैट इज़ 80 डिग्री. समझ में आ गया 40 डिग्रीज 60 डिग्रीज 80 डिग्रीज 8 + 6 14 14 + 4 8 180 हो गया हमारा टोटल 180. यानी हम टैली भी कर सकते कि हमारा आंसर सही है या गलत है. तो 40 + 60 इज़ 100 100 + 80 इज़ 180. तो 180 डिग्रीज आ गया हमारा टोटल. यस तो हमें जब पार्ट दिए होते तो उसका हमें वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए. अगर हमने परसेंट पूछा होता तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते. लेकिन टोटल क्यों लिखा हमने बिकॉज हमें वैल्यू निकालनी है. वैल्यू निकालनी हो तो टोटल कितने दिए है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है. अगर परसेंटेज पूछा होता तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. ओके हैव यू गॉट दिस हाउ टू डू दिस. नेक्स्ट जो ये दिया है वो मैं पढ़ के दिखाती हूँ. इट इज़ अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट. यानी जब हम परसेंटेज में इंक्रीज़ होता है यानी मुझे सैलरी इस साल जो है या पिछले साल थी उसमें से ये साल मुझे कोरोना की वजह से 10% लेस सैलरी अगर मिल रही है तो 10% लेस यानी क्या कम हो गई मेरी सैलरी. ओके तो उसमें हमें क्या करना है माइनस करना होता है. और जब इंक्रीमेंट होता है यानी मुझे इस साल जो सैलरी है उससे नेक्स्ट साल मुझे 10% ज़्यादा मिलने वाली है तो 10% ज़्यादा यानी +10% करना है. तो फर्स्ट वी विल स्टडी द एग्जाम्पल्स गिवन. स्कूल टीम won 6 games दिस ईयर अगेंस्ट 4 games.
वन लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर में उन्होंने 4 गेम जीते थे लेकिन इस साल 6 गेम। सो व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज? यहाँ पे इंक्रीज क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर से इस साल उन्होंने ज़्यादा गेम जीते हैं, तो उसका परसेंट निकालना है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन्स और अमाउंट चेंज इज 6 - 4 दैट इज़ 2। ओके, सो अभी परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए फॉर्मूला है परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज कितना हो गया? 2 डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट और बेस अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट और बेस अमाउंट क्या होती है? 4 है, क्योंकि पहले के लास्ट ईयर के कितने जीते थे? 4 जीते थे। ओके, और इस साल में उसका डिफरेंस कितना है? 2। तो उसका डिफरेंस निकालना है, इसीलिए इसका परसेंट निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया। सो 2 डिवाइड बाय 100, 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 50। दिस इज योर 50% हो गया। ओके, यानी 50% इस साल में हमने गेम्स में इंक्रीज पाया। ओके, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ चेंज। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला 10%, अभी मैंने ये जो सैलरी का बताया था वो मैं करके दिखाती हूँ कि कैसा है। ओके, तो दिस ईयर आई गॉट 10% इंक्रीज इन माई सैलरी दैन द लास्ट ईयर। तो उसमें परसेंट नहीं, मैं वैल्यू बताती हूँ कि ये साल मुझे कितना समझो 500 ज़्यादा मिले। लास्ट साल जितने थे 200 थे, उससे ज़्यादा मुझे 500 मिले, तो उसका मुझे परसेंटेज डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज में, नॉट वैल्यू में। इसीलिए मैं क्या करूँगी? पहले निकालना है। सो 500 - 200, ये लास्ट ईयर का है। दिस इज़ अबाउट लास्ट ईयर, दिस इज़ अबाउट दिस ईयर। तो 500 - 200 कितने हो गए? 300 का उसका जो डिफरेंस है, इंक्रीज जो है मुझे कितना मिला? 300 का मिला, उसका मुझे परसेंट निकालना है। तो कैसे करना है? दिस इज व्हाट द अमाउंट ऑफ चेंज, दिस इज द अमाउंट ऑफ चेंज दैट इज ऊपर। नेक्स्ट फर्स्ट जो अमाउंट था वो क्या था? 200 था लास्ट ईयर का। ओरिजिनल अमाउंट था 200 बिकॉज इसके ऊपर 300 का इंक्रीमेंट मिला है, इसलिए 200 इज योर ओरिजिनल, और उसका परसेंट निकालना है, इसलिए 100%। ओके, सो 0 गए, ये 0 गए, 2 से डिवाइड होता है 2, ये कितना हो गया? 150। सो 150% जो है वो आया आंसर। ओके, हैव यू गॉट दिस? हाउ टू टेक आउट द परसेंटेज? तो ऐसे ये जो है वो निकालना है मुझे। नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल दिया है, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 lakh। वन सेक, yes, so the number of illiterate persons in a country decreased from 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years। 10 साल में क्या हुआ था? जो ये था, यस, इलिटरेट जो पर्सन सीखते नहीं है वो, तो जो सीखे नहीं है तो वो क्या हुआ? उसका परसेंटेज वो डिक्रीज हो गए, पर्सन्स जो है डिक्रीज हो गए फ्रॉम 150, यानी 10 साल पहले 150 लाख जो थे वो इलिटरेट थे, अभी वही अमाउंट हो गए 100 लाख। सो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? द ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स इनिशियली यानी 10 साल पहले वो कितना था? हमें जो भी दिया है वो पहले लिख के लेना है। सो हम क्या करेंगे? ओरिजिनल अमाउंट क्या दिया है, दैट इज व्हाट इज मीन बाय ओरिजिनल अमाउंट, दैट ऑल्सो यू हैव टू नो। ओरिजिनल अमाउंट क्या दिया है? ओरिजिनल अमाउंट यानी 10 साल पहले की अमाउंट कितनी थी? 150 लाख। ओके, अभी जो है अमाउंट ऑफ चेंज, अभी उसमें से हमें अमाउंट ऑफ चेंज निकालना है। ओके, अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज कैसे निकालना है? अभी का कितना हुआ है? इस साल का अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ है? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, दैट इज 150 माइनस 100। डिक्रीज कितना हुआ है? 100। सो 150 डिक्रीज है इसलिए माइनस किया है, इंक्रीज होता तो प्लस किया होता। 150 माइनस 100 इज 50। अभी हमें क्या निकालना है? वी हैव टू परसेंटेज डिक्रीज निकालना है हमें, परसेंटेज डिक्रीज।
डिक्रीज़ क्यों? क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ लिखेंगे। परसेंटेज डिक्रीज़ हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला आपको पहले लिखना होगा, अमाउंट ऑफ चेंज। ऐसे सीरियली ही लिखते जाना है, पहले गिवन लिखना है, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो पहले निकालना है। सो ओरिजिनल अमाउंट 150 लाख, अमाउंट ऑफ चेंज इज़ 150 माइनस 100 दैट इज़ 50 लाख, सॉरी, ओके। सो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। यहाँ पे नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। सो अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ? 50 लाख, ओके। ओरिजिनल अमाउंट थी 150 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100, ये लाख लाख गए, ओके। ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया। अभी 10 और 15 किसके टेबल में है? 5 के। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ? 50 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3 हो गया, दैट इज जो हमने पहले ही निकाला था, 33% निकालना है, 1/3%, ओके। 100/3 का 33, 1/3%। सो लाइक दिस यू हैव टू टेक आउट द परसेंटेज। अभी नेक्स्ट जो है वो दिया है आपको कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, द प्राइस रिलेटेड टू द एटम और बाइंग एंड सेलिंग। सो पहले मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ मीन बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? एक कॉस्ट प्राइस होती है और एक सेलिंग प्राइस होती है। Cost price means CP and selling price means SP. What is mean by cost price? The buying price of any atom is known as cost price. Buying यानी जब हम लेते हैं, that is called a buying price. ओके, जो कीमत में हम लेते हैं, यानी मैं अभी समझो पेंसिल लेने गई हूँ, तो मैंने पेंसिल ली 3 रुपीज़, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? मैंने लिया, मैंने पैसे दे के लिया है, सो 3 रुपीज़ इज़ माई कॉस्ट प्राइस। अभी मैंने घर पे आके मेरे फ्रेंड को वही पेंसिल 5 रुपीज़ में बेची, तो व्हाट इज़ दैट? यानी बेचना, और कॉस्ट यानी परचेस करना। परचेस करना दिस इज कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी बेचना, तो मैंने बेची कितने में? 5 रुपीज़। अभी अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी सेलिंग प्राइस से तो मुझे लॉस होगा। तो ये ध्यान रखना है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज़ अ प्रॉफिट, यानी मुझे मुनाफा मिलेगा, ओके, फ़ायदा होगा। अगर सेलिंग प्राइस लेस हो गई, कैसे भी लिखो, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी और एसपी लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन देयर इज अ लॉस, ओके। तो मुझे लॉस होने वाला है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो एक मैं बात बताती हूँ कि उसमें से भी कैसे करना है। तो अ टॉय इज़ बॉट फॉर ₹72 एंड इज सोल्ड एट 80। तो सीपी क्या हुआ? एक मैंने खिलौना लिया जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 72 और उसकी सेलिंग प्राइस है 80। तो आपको देख के समझ में आ रहा है 80 इज़ ग्रेटर देन 72, दैट्स वाई सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयर इज़ अ प्रॉफिट, ओके। देन एट अ टी शर्ट बॉट फॉर ₹120। मैंने टी शर्ट लिया 120, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने क्या किया, वही टी शर्ट अभी मैं लेके आई हूँ, तो मैंने डाला है नहीं डाला है, इसकी वजह से मैंने क्या किया, वो 100 रुपीज़ में मेरे फ्रेंड को बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 120 है और सेलिंग प्राइस 100 है, यानी सेलिंग प्राइस कम हो गई कॉस्ट प्राइस से। सो एज द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देयर इज़ अ लॉस, ओके। सो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया। प्रॉफिट यानी फ़ायदा, लॉस यानी नुकसान, ओके। तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे नुकसान करके देना पड़ा, 20 रुपीज़ का नुकसान मुझे हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है, 70 रुपीज़ का टॉय 80 रुपीज़ में बेचा, यानी कितने रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो गया, 80 माइनस 72, 8 रुपीज़ मुझे फ़ायदा ही हो गया, ओके, दैट इज़ प्रॉफिट। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस, ओके। नाउ अगेन उसके आगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है, वो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। टिल देन बाय।